Good morning, one and all. I, Master Saurav Karanskar, student of TYB Farm, welcome you all on behalf of KK Education Societies, KK College of Pharmacy, Nashik, for a webinar on Intellectual Property Awareness Program to be delivered by the eminent speaker, Ms. Ujjwal Singh Madam. Let me tell you about our society and college in brief. KK Education Society is a leading educational trust in Nashik since 1970 and is running around 35 educational institutes from KG to PhD. Around 20,000 plus students are currently studying in this educational trust and around 2,000 plus staff are working. Over 60,000 plus alumni has completed their education in various fields from different colleges under KK is known for academic excellence and is the most preferred institute by students from all over the state. About KK College of Pharmacy, Nashik. KK College of Pharmacy, Nashik was established in 2017 and is approved by Pharmacy Council of India, State Government of Maharashtra, and is affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, with an annual intake capacity of 100 seats for first year B Pharmacy and 60 seats for first year D Pharmacy. Moving towards our topic for today's session, intellectual property rights, often referred to as simply IPR, denotes creations of the minds such as invention, literary and artistic works, designs, symbols, names, and images that are used in day-to-day life. Such creation of the mind represent the innovative talents, hard work, and skill of the people who produce them. They lead to technological advances in society and make the world a beautiful place to live in. Each one of us surrounded by intellectual property, ranging from our clothes to high-tech devices that we use today. IP is protected in law by copyrights, trademarks, designs, patents, geographical indications, and others. It offers rights to its owners upon its successful registration, known as IPRs. It enables people to earn recognition or financial benefit from what they invent or create. Now I request our respected principal, Dr. R.D. Amrutkar sir, to address us with a welcome speech. Good morning, one and all. I am audible? Yes, sir, you are audible. Good morning, one and all. On behalf of KK Education Societies and KK College of Pharmacy, I welcome Dr. Ujjwal Madam for this wonderful webinar on intellectual property awareness program, which is coordinating with National IP Awareness Mission and organized by our college. Hopeful this webinar is very useful for our students, and thank you very much, madam, for accepting our invitation for this webinar. And once again, I welcome you on this society and KK College of Pharmacy. Thank you. Over to Saurabh, please. Thank you, sir. I would like to felicitate our today's guest with the permission of our respected principal, sir. Please, please. Now I request our today's speaker, Ms. Ujjwal Singh Madam, to accept virtual bouquet as the token of respect and gratitude.
Thank you, sir. Thank you very Welcome, much. madam. I now request Sakshi to introduce our today's guest. Good morning all. I, Sakshi Raite from second year B Farm of Kekewa College of Pharmacy, deem it a great honor to introduce our today's eminent speaker, Ms. Ujjwal Singh, Examiner of Patents and Designs, Mumbai, Patent Office, Department of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. She has completed her graduation in chemistry from St. Stephen's, Delhi University and Masters in Chemistry from IIT Delhi from 2015 to 2017. She had successfully qualified GATE examination in 2017 with securing All India rank 97. She has done a project on hydrogen production, photoelectrochemical water splitting in IIT Delhi from 2017 to 18. Ma'am has worked as scientist in quality evaluation laboratory Spices Board. Ma'am, there is much to say about ma'am, but due to time constraint, without much delay, I would like to request Ms. Singh to commence the session. Thank you, everyone. Good morning, all of you, and thanks for having me today. I welcome respected principal sir, the faculty member, and all my fellow friends on this IPR awareness program conducted on the behalf of CGPDTM, Ministry of Commerce, Government of India. As we all know, before I request all the participants to mute themselves. Please mute yourself, otherwise it will create noise problem. Okay. So as we all know, our nation is celebrating 75th anniversary of independence under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and in which a mission is launched called NIPAM. In here we have to enlighten and motivate the student regarding the intellectual property rights and their objectives and their future needs. So the purpose of this present, you can convert your ideas into benefits of your idea by converting them into assets. So before spending too much time on the introduction, let's begin with the presentation. Ma'am, can you stop sharing this present flyer so that I will start my. Yes, ma'am. Okay, just let me know whether the screen is visible to you or not. Yes, ma'am. Is it Yes, visible? ma'am. The presentation is it visible? Yes, ma'am, it is visible. So in today's presentation, we will have mainly 2-3 points that we will be discussing. First of all, what are intellectual properties? कि intellectual properties क्या होती हैं? Then उनके domains, sub parts of intellectual properties. कौन सी which are different types of intellectual property? What are the objectives of intellectual property rights? And why do we need intellectual property rights? Then we will look at the type of intellectual property rights. For example, patents, designs, trademarks, geographical indications, and copyrights. And then we will have a quiz at the end of this session. So I will request all the participants to be attentive during the presentation. And in between, I can also ask you some questions because intellectual properties are something you will encounter in your day-to-day life. The only thing is we are not aware of it and we don't give any importance to it. And when we got aware about the
utility and significance of intellectual properties, then we must be consume taking the advantages of converting them into assets and then getting financial benefits out of it. So this whole presentation is based on different kinds of intellectual properties. To be attentive, I request all of the participants and mute yourself. So we know earlier times people used to buy lands, farmhouses, and they do the trading of all these things. They buy uh, lands, buildings, and houses, or some vehicles like tractors. The farmers used to buy and sell tractors and the related equipments. But when the time starts advancing, when the technology starts growing, then people started recognizing the need and importance of innovations and inventions. So then some thoughts come into mind ki we need to protect. How can we get benefit? How can we get financial benefit out of the inventions and innovations and technologies? So then people started converting them into a kind of property. And this is how we can convert our ideas and creativity into a property and then get financial benefits out of it. So basically, property is divided into two main subparts, which one is the tangible part and another is the intangible part. So intangible properties में we have the properties which we can measure. जैसे कि मैंने बताया आपको farms का और lands का example. So all these things we can measure them. They can be seen by the naked eyes. But there are some properties that are hidden because they are coming out of some human intellect. They are coming off of human ideas, mind. So those property which we cannot measure are considered as intangible properties. जैसे आप colleges में आपको professors पढ़ाते हैं, तो it is a kind of service that is provided to you by your professors. So that service, can you measure the amount of service? उनकी efforts का कोई, you cannot measure them. कोई मोल नहीं है उनका. So those type of properties which cannot be measured, they are considered as tangible property. Again, intellectual property is a kind of intangible properties. For example, we all are using mobile phones, but how these mobile phones are able to deliver messages or send mails or do post some ads, or right now we are doing video conferencing. We all have devices, but how are we capable of doing this video conferencing? Some idea was there that is implemented, that is embedded into a device, and when it got embedded into a device, it is converted into a property. So इसी तरीके से जो intellectual properties हैं वो hidden होती हैं. जो idea है मोबाइल की वर्किंग के पीछे, nobody knows about it, कि किस तरीके से ईमेल सेंड होते हैं. So that idea, that creative idea, वो किसी human mind का नतीजा है, किसी human brain का नतीजा है. और जब हम उस आइडिया को किसी डिवाइस में भी इम्प्लीमेंट दैट आइडिया, तो एक प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है. नाउ इन intellectual property we will be looking at industrial properties and copyrights later. So now comes the definition of intellectual property. What intellectual property is? In Hindi it is called as बौद्धिक संपदा. इसको हिंदी में बौद्धिक संपदा कहते हैं. सो नाम से ही पता चल रहा है कि मनुष्य की बुद्धि से उत्पन्न कोई भी संपदा वो बौद्धिक संपदा कहलाती है. तो जहां भी ह्यूमन ब्रेन is working in any creativity which is result of human intervention, it is termed as intellectual property. Again, intellectual property is an asset which can be bought, sold, licensed and exchanged like any other form of the property. ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, जब आइडिया को हमने मोबाइल एक डिवाइस में इम्प्लीमेंट किया,
जो ईमेल आईडीज हैं, जब हम मेल्स डिलीवर करते, देन वी कैन डू फोन कॉल्स, व्हेन दे आर एम्बेडेड इनटू अ डिवाइस, देन वो एक तरीके का एसेट्स बन जाते हैं। और जब एसेट्स बन जाते हैं तो उनको हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं और लाइसेंस भी कर सकते हैं। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हमारी जो बौद्धिक संपदाएं हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है कॉपीराइट। नाउ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में हम वो सारी प्रॉपर्टीज लेते हैं जो कि विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज में जिनका उत्पादन किया जा सके, जैसे कि आपके पेटेंट्स हो गए, देन ट्रेडमार्क्स, देन इंडस्ट्रियल डिजाइंस एंड देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि इनको हम इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हजारों करोड़ों की संख्या में। देन अनदर इज कॉपीराइट्स। नाउ कॉपीराइट्स में आते हैं आपके लिटरेरी वर्क, आपकी पोएम्स, म्यूजिक्स, आर्टिस्ट वर्क, आर्किटेक्चरल डिजाइंस, और उसके अलावा भी कुछ राइट्स होते हैं जो कि कॉपीराइट्स की ही डोमेन में आते हैं, जैसे कि परफॉर्मर्स राइट हो गए और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो गए। तो आज हम ये 5 तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन का मेन पर्पस है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि अगर आप किस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर उसको प्रोटेक्ट कराना है। सपोज आप कोई नॉवल लिख रहे हो तो आपको कहाँ जाके उस नॉवल को प्रोटेक्ट कराना है, या आपने कोई नया मास्क बनाया है, नई कोई ड्रग्स बनाई है तो आपको उसको कहाँ जाके प्रोटेक्ट कराना है, या आपने कोई नई किसी आर्टिकल को नई शेप दी है या नया डिजाइन दिया, तो वेयर डू यू गो एंड प्रोटेक्ट द आइडिया फॉर दैट। नाउ comes the term intellectual property rights. So like any other property rights, हमें अधिकार क्यों दिए जाते हैं? जैसे मानव के को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। वी हैव कस्टमर्स राइट, कंज्यूमर्स राइट, सो ताकि सोसाइटी में बैलेंस बना रहे बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। जो अलग अलग लेवल के सोसाइटी है उनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए हमें अधिकार दिए जाते हैं। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो जो the person who is creating and who is owner of the intellectual property, उसकी प्रॉपर्टीज का पूरे तरीके से फेयर तरीके से इस्तेमाल कर सके, उसका मिसयूज ना हो, इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक एनी अदर राइट्स, दे इंश्योर द क्रिएटर or owner of the patents, designs and trademarks to benefit from their own work. Suppose आपने कोई नई पेंटिंग डिजाइन की है, पेंटिंग बनाई है आपने कोई नई, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग हो गई, तो सबसे पहले कोई दूसरा आर्टिस्ट भी उस पेंटिंग को कॉपी कर सकता था। नाउ फ्यूचर में वो क्लेम कर सकता है कि मैंने ये पेंटिंग मुझसे बिलोंग करती है, ये मेरी पेंटिंग है, बट दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियरली न्यू। वो बिल्कुल यूनिक थी अपने आप में, वो पेंटिंग यूनिक थी, और आप उसके प्राइस को भी देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ यूनिकनेस एंड ओरिजिनलिटी ऑफ दैट पेंटिंग, उसका प्राइस बहुत ही हाई हो गया। व्हाई? बिकॉज इट इज ओरिजिनल। नाउ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव राइट्स, और ऐसे इंटेलेक्चुअल आइडियाज को जब प्रोटेक्ट करने के लिए की बात आती है तो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे कम इनटू फोर्स। सो नाउ कम्स द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? जब भी आप जैसे क्लास में कोई एग्जाम्स होता है तो आप चाहते हैं कि वो फेयर तरीके से कंडक्ट हो, उसके लिए हमारे अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स बनाई जाती हैं कॉलेजेस में। ये उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्क करते हैं। मार्केट में बहुत कंपटीशन चल रहा होता है, जैसे अभी मोबाइल कंपनीज ही ले लो, जब जैसे ही कोई कंपनी अपने डिवाइसेस में एक फीचर लॉन्च करती है तो तुरंत there are many companies that start copying their ideas. तो यही प्रिवेंट करने के लिए ये कॉपिंग और चीटिंग, कंपटीशन को प्योर तरीके से, मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसको फेयर तरीके से मेंटेन करने के लिए
we have intellectual property rights. So intellectual property rights, they encourage fair trading and contribute to the economic and social development of the country. Now comes कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है. सपोज आपने कोई नॉवल लिखा या कोई स्टोरी बुक लिखी, क्या आप उसको एक दिन में लिख के खत्म कर सकते हो? आपको पता है कि जो राइटर है, ऑथर है, उसको सालों लग जाते हैं कोई बुक लिखने में. सो वो ऐसे ही अलग अलग तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको बनाने में या इम्प्लीमेंट करने में ढेरों साल लग जाते हैं, एंड देन resources are also invested on those while creating those intellectual property. So in order to get full return of the time, the money, the labor, the hard work, the thinking thought process, in order to get the fair return of all of these, the rights are given so that the creator and owner of these properties, they get full benefit out of their creations. Now comes the importance and significance of intellectual property rights. सबसे पहले तो जैसे ही आप अपने intellectual property को protect करा लेते हैं, तो you can exclude others from copying or selling your creations. अगर आपने कोई बुक लिखी है और आप उसको कॉपीराइट्स के अंदर प्रोटेक्ट करा देते हो, तो जैसे ही आपको प्रोटेक्शन मिलता है, उसकी तुरंत फोर्स में आने से यू कैन कंट्रोल अदर. अगर दूसरा इंसान आपकी ही स्टोरी को आप अपना नाम देके मार्केट में बेच रहा है, तो यू कैन प्रिवेंट इट, यू कैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम सेलिंग योर वर्क. हाउ? because you have some legal document. then जैसे ही आप प्रोटेक्ट कराते हो, आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाता है जो कि which will help you in future when you file a case against the person who is selling your book by his name. Second thing is it protects your creativity or ideas. Now it excludes, मतलब वो बाकी लोगों को रोकता है. Then it protects your ideas from copying and getting financial benefits out of it. And the third thing is it utilizes and commercialize and earn. It helps in utilization, commercialization and earning. अब आपकी बुक है तो उसको आपके नाम पे ही बेचा जाएगा. Then you can decide the cost of that book and you can earn from that book. So this is a whole cyclic manner you are getting financial benefits of your creation. Now these are the significances in short. They avoid these property rights, IPR. They avoid duplication of research. Then they serve as an indicator of achievement in research and development institutions and encourage for the improvement of the technology. They utilize the published patent specification, and you can get royalty by putting your inventions into practice. Then the creator and owner commercially exploit his inventions without the fear of copying and imitating. Now before starting this, सपोज आपको मार्केट में मोबाइल फोन खरीदने जाते हो आप. सो ऑन व्हाट फीचर्स वुड यू लुक? आप उसमें क्या क्या देखते हो? आई विल गिव यू 3 कंपनीज. सो I request the students to unmute themselves and suggest me the name of some mobile companies. Are you able to unmute yourself? Hello? Am I audible, ma'am? Hello? Yes, ma'am. Yes. Okay, so students can unmute themselves now. Yes, ma'am. Okay, so I request
मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने ऑडियो को और आप बताइए 3-4 मोबाइल कंपनीज के नाम। iPhone, Redmi, OnePlus, iPhone, Redmi, then OnePlus, then ओके Samsung. 3 सैमसंग। ठीक है, तो हमारे पास अभी 4 मोबाइल कंपनीज हैं। अच्छा, उन अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप कौन सी मोबाइल कंपनी के कौन से कंपनी का मोबाइल खरीदना पसंद करेंगे? OnePlus. नॉट आईफोन। अभी यहाँ पे पैसे की बात मत सोचो, सिर्फ उसके फीचर्स पे बेस्ड बात की जा रही है फिलहाल। Actually, ma'am, we have to buy the feature from ओके, नहीं नहीं, अभी सपोज आपके सभी चारों ही इक्वल प्राइस में मिल रहे हैं, तो आप कौन सी कंपनी प्रेफर करोगे? obviously OnePlus, ma'am. ओके, वन प्लस। तो जब भी आप और क्या देखते हो आप मोबाइल खरीदते टाइम? क्या क्या फीचर्स चेक करते हो आप मोबाइल खरीदते टाइम? उसके कुछ टेक्निकल फीचर्स देखते हो ना? Processor, battery. उसके बाद आप मॉडल भी देखते हो कि कौन सी शेप, कौन सा लाइट वेट है, या फिर दिखने में कौन सा अच्छा है, कौन सा पॉकेट फ्रेंडली है, CMB होना ये चाहिए. सब देखते हैं। यस, तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ही हैं। जब आपने नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ, अब आप म्यूट कर सकते हो खुद को। सो अभी जैसे आपने 4 ब्रांड्स बताई, तो ये ब्रांड्स क्या है? कंपनी का जो नाम है वो कोई सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सैमसंग एक सिंबल है, एक वर्ड है जिसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ना। नाउ आईफोन्स के डिवाइसेस पे एक सिंबल आता है हाफ कट एप्पल का, सो दैट इज अ टाइप ऑफ लोगो और सिंबल, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे लोगो, सिंबल्स और वर्ड मार्क्स दे आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क्स, तो हम इनको ट्रेडमार्क्स के द्वारा प्रोटेक्ट कराते हैं। देन आपने बोला कि हम वन प्लस का मोबाइल खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि उसके फीचर्स अच्छे हैं। तो उन फीचर्स को, उन टेक्निकल फीचर्स को जो क्रिएटर हैं उस प्रॉपर्टी के, उन्होंने पेटेंट्स के द्वारा प्रोटेक्ट कराया होगा। नाउ कम्स द आउटर मोस्ट अपीयरेंस। आप देखते हो कि जो जितना अच्छा आपको दिखता है, कोई लाइट वेट होता है, तो जो आउटर मोस्ट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी डिवाइस के, डिजाइन कैसा, उसका कलर कैसा, उसका शेप कैसा है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय डिजाइन। तो ऐसे ही आप लोग ने कपड़े पहने होंगे, देन यू कैन हैव डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ क्लोथ्स, सो वो ब्रांड्स दे आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क्स। हाउ डू यू नो दैट दैट पर्टिकुलर क्लोथ बिलोंग्स टू दैट ब्रांड? कैसे पता चलता है? उनके लोगोस के द्वारा, उनके सिंबल्स के द्वारा, जो उन्होंने सिंबल्स दिए हुए हैं। नाउ इन सभी को हम प्रोटेक्ट कराते हैं। ये सभी एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं। एंड इन द लेटर स्लाइड्स यू विल गेट टू नो अबाउट कि किस तरीके से जो ब्रांड्स हैं वो बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिटी, जब वो हाई प्राइस भी ऑफर करते हैं तो कस्टमर्स उनको खरीद लेते हैं। नाउ द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉपीराइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर हियर, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। कोई पेंटिंग बनाने में बहुत अच्छा होगा, कोई स्कल्पचर्स अच्छे से बनाता होगा, ठीक है, कोई यूट्यूब पे वीडियोस अच्छे से पोस्ट करता होगा बना के। दिस इज द ट्रेंडिंग थिंग इन टूडेज वर्ल्ड। सो और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गेम्स खेलते हैं, जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, वो यूट्यूबर्स को देखते हैं। सो यूट्यूबर्स आपको पता है किस तरीके से कितनी अर्निंग कर लेते हैं जब लाइव स्ट्रीमिंग वो अपने गेम्स की दिखाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोटेक्टेड। उन्होंने अपने जो वीडियोस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। हाउ? ये सब कॉपीराइट्स की डोमेन है। आप कॉपीराइट्स के द्वारा अपने वेज ऑफ एक्सप्रेशन को, ऑफ आइडियाज को प्रोटेक्ट करा सकते हैं।
No, so copyrights is the legal term that describes the right given to the creator for their literary, artistic, musical, and dramatic, cinematographic work and sound recording. So if you are creating something new and original in any of these 6 domains, then you can go and protect your ideas and creativity. ठीक है? तो अगर आप लिटरेरी फील्ड में या फिल्म से एसोसिएटेड हैं या फिर कोई ड्रामेटिक्स फील्ड में और म्यूजिकल आर्टिस्टिक या साउंड रिकॉर्डिंग्स में आप काम कर रहे हो और आपका काम ओरिजिनल या नया है, तो यू कैन गेट इट प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट्स। लिटरेरी वर्क में आपके नॉवेल्स आ जाते हैं, आपकी बुक्स आ जाती हैं, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ जाते हैं। नाउ आप बताओगे कि जो एप्स होती हैं, यू कैन अनम्यूट, पार्टिसिपेंट्स कैन अनम्यूट एंड गिव मी द आंसर। हम देखते हैं कि जो हम कोई ऐप जब यूज कर रहे होते हैं, जैसे आप गेम्स भी खेलते हो, तो वो अपडेट होके आती हैं, तो अपडेट होते हैं तो क्या होता है उसमें? एनीवन? तो बेसिकली जब हम अपडेट्स करते हैं तो वो नए फीचर्स लाते हैं एप्स में, या फिर कोई प्रॉब्लम थी जो पुराने फॉर्मेट में थी उसको रिमूव करते हैं। तो एक्चुअली जो एप्स है दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एप्स कैसे काम करती हैं? लैंग्वेज पे बेस्ड कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उन पे काम करती हैं। सो एक्चुअली हम एप्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं उनकी वर्किंग के लिए यू कैन प्रोटेक्ट इट, क्योंकि वो एक्सप्रेस्ड हैं, दे आर रिटन समवेयर, तो आप उनको कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन कम्स द आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क में आते हैं आपके ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, चार्ट्स, स्कल्पचर्स एंड पोस्टर्स। तो इफ यू आर क्रिएटिंग सम mind blowing drawings or paintings that is completely new and original, you can go and file for its protection under copyrights. Now comes the musical work. Musical work can exist in two forms. The one is graphical and another is lyrical part. So you can get both of the things protected under copyright. Now some rights are there, for example broadcasters rights. Now broadcasters rights क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जो चैनल्स हैं दे वो केवल पर्टिकुलर शोज को ही दिखाते हैं। जैसे सोनी टीवी पे आप कपिल शर्मा शो ही देखोगे या फिर क्राइम पेट्रोल ही दिखाई देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सोनी टीवी है उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए हुए हैं टू लॉन्च Kapil Sharma show. So these all are rights, the domains of copyrights. In short, copyrights में हम ideas के expressions को protect करते हैं. For example, right now I am presenting to you this webinar. ठीक है? So the way I am presenting this, it is protected via copyrights. Once I got the copyright on this, I can protect the other person, third party, from showing this webinar without my permission. So he need to seek my permission first. So this is the significance of copyright. Now comes the another intellectual property, which is design. So designs covers the ornamental and aesthetic aspect of an article, which may be 3D or shape. Now suppose आप market में जाते हो तो you can find different types of bottles, different shapes of bottles, different colors of bottles, same bottle लेकिन उसके अलग अलग colors हैं. So all these shapes, all these designs की वो outer उसके looks कैसे हैं, ये customer को क्या करते हैं, जितना ज्यादा कोई attractive bottle होगी customers उसको ज्यादा buy करेंगे. So these things you can also do. आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं. जब भी आप कोई सा मार्केट में प्रोडक्ट देखते हैं और आपके माइंड में कोई आइडिया आता है कि अगर इसका शेप मैं ऐसे कर दूं, ऐसा इसका कलर मैं चेंज कर दूं, तो इसको ज्यादा कस्टमर्स बाय करेंगे. तो यू कैन फाइल फॉर इट्स प्रोटेक्शन. यू कैन डिजाइन that shape of the article and you can then file for its protection.
Now, one more thing, ma'am, can I take a break over here? Yeah, ma'am, sure. Okay. I will be back in 5 minutes, ma'am. I have to take a call. Yeah, ma'am, sure. Sorry for the interruption, ma'am. Now the screen is visible. Yes, ma'am. So industrial designs, basically it relates to the feature of shapes, configurations, patterns or ornamentations, and these should be applied to the articles by the industrial process. These designs should be new and original and not previously published and appeal to the eye of the customer. तो इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है. अभी एक हफ्ते पहले मैं अपने लिए शूज खरीदने के सोच रही थी. So I found that कि सेम मटेरियल से बने हुए दो शूज, टू डिफरेंट पेयर ऑफ शूज, एवरीथिंग वाज सेम बट उनके कलर्स में डिफरेंस था. एंड जो कलर्स मोर अट्रैक्टिव था, जो दिखने में ज्यादा अच्छा था, वो सोल्ड आउट था एंड इट हैव हाई प्राइस और उसका प्राइस ज्यादा था. तो देखो, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, ऐसा कोई शेप्स या डिजाइन्स में चेंज लेके आते हो और फिर आप उसको राइट्स के को advertise करके. Now, as it is there on the screen, earlier we have normal chairs in the offices and schools, but then somebody designed this type of chair. So you can find these chairs in most of the nursery or pre-nursery schools. So this design is protected by some person and he might be earning out of it. Now, another is these milk cans. Earlier we have normal packet, but then, and you know that कि इनके price high होते हैं, लेकिन फिर भी because of their good looks or good outermost appearance, customers buy these products. Now designs can be applied to the set of articles. I mean, जो चीजें, that those articles that comes in the pair or in a group, designs can also be applied to it. Now comes the another intellectual property, which is trademarks. So trademarks के बारे में हमने अभी पूछा था मैंने आपसे. So trademarks covers the symbols, sign, words, logos that help to distinguish one company from another. तो फ्यूचर में अगर आप में से कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करता है, सपोज ड्रग्स की कंपनी स्टार्ट करनी है किसी को, तो आपको अपनी कंपनी का सबसे पहले जो नाम है, या आप उसको कोई पहचान दोगे मार्केट में, कैसे पहचान दोगे? किसी सिंबल से, किसी लोगो से, किसी वर्ड से. तो वो वर्ड जो है, वो सिंबल जो है, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड होना चाहिए. उससे पता चलेगा कि आप जो प्रोडक्ट है वो आपकी कंपनी का है. फर्स्ट थिंग, उसको सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट कराना होगा. एंड हाउ विल यू प्रोटेक्ट? बाय ट्रेडमार्क. आप ट्रेडमार्क के अंडर उसको प्रोटेक्ट करा सकते हैं.
also as, can you unmute and tell the name of these brands जो अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं, जो साइंस आपको दिख रहे हैं? प्लीज आंसर क्विकली. जो जो आपको स्क्रीन पे साइन दिख रहे हैं ये किसी ब्रांड से रिलेटेड है, तो क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी ब्रांड्स हैं? द फर्स्ट वन. Screen is not visible, ma'am. Screen is not visible. No, ma'am. Just wait a minute. Now No, ma'am. No, ma'am. It's invisible. is it visible? No. Ma'am, it is visible. Yes, ma'am, it's visible. No, ma'am. Okay, so for those this screen is visible, they can answer. Which brand is related to the first sign? जब आप ये मार्क देखते हो तो आपके माइंड में कौन सी ब्रांड का नाम आता है? द राइट वाला साइन. Bisleri. आपको कौन सी स्लाइड दिख रही है अभी? Of So the industrial first right- designs. Ma'am, actually the screen is not visible. But I am sharing. Okay. So I am sharing again. Please let me know if it is visible or not. अभी दिख रहा है? Ma'am. Is it visible now? No, I think there is problem. ma'am. Not yet. Okay. अभी now it should be visible. It is still not visible, ma'am. Patil ma'am, Yes, is the ma'am. screen visible? Is the No, ma'am. presentation The visible? screen is not visible. But ma'am, I am sharing. I don't know where the problem is. So my audio is clear now. Yeah, audio is clear, but screen is not visible. Okay. Okay. Once. Now, No, ma'am. Could you please newly share it, ma'am? I am sharing it, new, ma'am. I have stopped sharing and okay. Then entire screen. Is it visible, ma'am, now? No, ma'am. So what I can do is, ma'am, I am sharing my presentation to Patil ma'am. Patil ma'am, are you there? Patil ma'am, are you there? Yes, ma'am. Okay, ma'am, I am sharing my PPT to you. Okay, ma'am. You can share from there and I will tell you on which slide I am. Okay, ma'am. Okay. So till what time the screen was visible? कब तक visible थी मैम ये screen? मैम विजिबल थी अब तक, अभी नहीं है. Okay.
I have shared with you, ma'am. You can please open the, Yes, ma'am. and I am on 34th slide of it. Basically, I am on 31st slide. Till then, ma'am, I am continuing the theoretical part. Ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yes. So after this trademarks, I think the concept is of trademark is clear to most of the participants. तो जब भी आप कोई अपनी ब्रांड से अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना होता है मार्केट में. तो रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम उनको सिंबल्स देते हैं, उनको जो लोगोस देते हैं, उनको जो मार्क्स देते हैं, साइन देते हैं, वो सब साइंस आप ट्रेडमार्क्स के अंडर प्रोटेक्ट करा सकते हैं. नाउ कम्स द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस. तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में as the name suggests in Hindi, these are भौगोलिक चिन्ह. भौगोलिक जो उपदेश होते हैं उनको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस बोलते हैं. जैसे अगर आपको ऑरेंजेस खाने हैं तो विच वन वुड यू प्रेफर? अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, एक नॉर्मल ऑरेंजेस, कॉमन ऑरेंजेस एंड देन नागपुर संतरा, सो you will prefer Nagpur orange. Why? Because of its unique taste and texture. उसके यूनिक टेस्ट और टेक्सचर की वजह से उनको जीआई टैग दिया गया है. और उनमें वो यूनिक टेस्ट आया कहाँ से है? ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, द सॉइल और द टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशंस ओवर देयर. सो लोकेशंस की वजह से जब कोई गुड्स, कोई मटेरियल जब एक यूनिक फीचर के साथ और टेक्सचर के साथ आपको दिखाई देता है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करा लेना चाहिए. और उसको प्रोटेक्ट कराने के लिए वी हैव ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. उसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं. आप नासिक से हैं तो आप बताओगे कि नासिक का क्या फेमस Excuse है? me, ma'am. Hello. Yes. Ma'am, sorry for interruption, but now I can share that screen. So should I? Yes, you can go Yes, for ma'am. it. Please open slide number 39. Yes. So till then participants can unmute and answer कि नासिक का क्या फेमस है? Grapes. आप बता सकते हैं? Grapes, Grapes, yes. And one more thing, wine, yes, wine. और आपको पता है वो ma'am, क्यों इतना? is it visible, ma'am? Yes, it is visible. Okay. Now you can
change the slide, I will tell you. Ma'am, I have अभी ये 12:30 तक चलेगा. मैं जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करूंगी. ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ. नाउ तो आपने बोला कि नासिक के वाइन्स और ग्रेप्स फेमस हैं. तो आपको पता है कि वो क्यों बाकी जगह से अलग हैं, उनका टेक्सचर क्यों अलग है? क्योंकि वो ज्योग्राफी, जो नासिक की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो इस तरीके की है कि वहाँ के लोकेशन ने, वहाँ के सॉइल ने, वाटर ने और टेम्परेचर ने इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है उनके टेस्ट को, जो कहीं किसी और लोकेशंस में नहीं मिलता है. सो व्हेन यू हैव सच टाइप ऑफ थिंग्स, ऐसा यूनिकनेस, जब कोई भी फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में या किसी भी गुड्स में, when you see this, you can go and file for the protection. Now one more thing, the most of the people of our society, the experiences, आपने देखा होगा कि ये ट्राइबल जो पीपल है, मोस्टली रूरल पार्ट्स ऑफ द सिटी, वहां पे आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस से रिलेटेड गुड्स दिखाई देंगे, बट वहां के लोग अवेयर नहीं होते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारी ट्राइबल वुमेन होती है, दे यूज टू प्रैक्टिस अ काइंड ऑफ रंगोली और आर्ट अपनी वॉल्स पे, ऑन द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस. सो एक्चुअली अगर उनकी वो जो टाइप ऑफ वर्क बिल्कुल यूनिक है, नया है, बाकी जगह नहीं मिलता, बाकी लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते, इट्स नॉट कॉमन थिंग, so they can go and file for the protection under GI. और राजस्थान की कठपुतली वो इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, क्योंकि कठपुतली वाला जो पार्ट है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा बाकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस में. देन वी हैव कांजीपुरम सिल्क, Kashmiri saffrons. So these all are the famous geographical indications tag. Now you can come to the 41 slide. 41. So this is one of the major intellectual property, which is patent. So patents cover the inventions. हम हमें अगर अपनी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट कराना है तो हम उसको पेटेंट कराएंगे. मींस एक अस्वर, दे आर द एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट granted to the inventor by the government to use for limited period of 20 years. So patents दिए जाते हैं आपको इन्वेंशंस के लिए, और जो क्रिएटर है इन्वेंशन का, जो आविष्कार जिसने किया है, उसको वो 20 साल के लिए दिए जाते हैं और इसको गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है. लेकिन इन एक्सचेंज में आपको एक्सचेंज में अपनी इन्वेंशंस फुल्ली डिस्क्लोज करनी होगी. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि क्या आप सारे आविष्कारों को, सभी आविष्कारों को पेटेंट्स दिला सकते हैं? द आंसर इज नो. केवल उन्हीं इन्वेंशंस को पेटेंट्स मिलते हैं जो 3 बेसिक क्राइटेरियाज को पास करते हैं. द फर्स्ट वन इज नोवेल्टी, सेकंड इज इन्वेंटिव स्टेप एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. इट मींस या तो आपकी इन्वेंशन नॉवल होगी, नई होगी, या फिर वो इन्वेंटिव स्टेप होगी, इट मींस एडवांस या कुछ उसमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगा, या फिर वो इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल होंगी. So please come to the 44th slide. So a very good examples, कैसी इन्वेंशंस को आप पेटेंट प्रोटेक्शन मिल सकता है. द फर्स्ट थिंग इज आपकी कोई ना कोई लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए आपके इन्वेंशन में. जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर फेसिंग कोविड सिचुएशन. सो इसमें अगर कोई ऐसा मास्क लेके आ रहा है जो बिल्कुल ही 100% या 99% इफेक्टिव अगेंस्ट प्रिवेंटिंग द जर्म्स, पार्टिकुलेट मैटर के फ्लो को जो प्रिवेंट कर सकता है, अगर कोई ऐसा मास्क बना रहा है तो
वो एक नया मास्क कंसीडर किया जाएगा, एक यूनिक एडवांस मास्क कंसीडर किया जाएगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो आप देख रहे हो कि N95 जो मास्क होता है उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई ऐसा मास्क आ रहा है जो N95 से भी बेटर है Sorry for interruption, in ma'am. protecting Shubham Darekar, please mute yourself. Your mic is on. okay. Okay. So इस तरीके के inventions they are considered as technically advanced and they are eligible for patenting. Now another thing is economic significance भी हो सकता है। अगर नई नहीं है, एडवांस नहीं है, तो अगर आपकी जो इन्वेंशन है वो इकोनॉमिक नजरिए से अच्छी हो, जैसे कि आप कोई ड्रग्स बना रहे हो, नाउ आपने उसका मॉडिफिकेशन की है, सेम ड्रग है लेकिन आपने उसमें कुछ इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स या इस तरीके से उसकी कंपोजिशन चेंज कर दी कि नाउ द शेल्फ लाइफ हैज बीन इंक्रीज, तो आप कौन सी प्रेफर करोगे खरीदने के लिए? द वन विच हैव मोर सेल्फ लाइफ। तो दिस इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो इन्वेंशंस या तो टेक्निकली एडवांस हो या फिर उनकी कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, उन्हीं इन्वेंशंस को हम पेटेंट्स के अंडर प्रोटेक्ट करा सकते हैं। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पेटेंट इज this shoes. We all know about the celebrity Michael Jackson. So he was very good pop dancer. But the magic was behind his shoes. Actually उनके जादू जो था वो इतना अच्छा डांस कर पाते थे, इतना बेंड कर पाते थे और फिर भी गिरते नहीं थे, वो था उनके शूज में। There was certain kind of hook arrangement in his shoes which helped him from falling to the ground. और इस तरीके से वो इल्यूजन क्रिएट करते थे। लेकिन उस टाइम पे भी देखिए आप, सेलिब्रिटीज भी उस टाइम के इतने अवेयर थे कि उनको पता था कि ये शूज अगर कोई और खरीद लेगा तो देन उनके डांस का जो सिग्निफिकेंस है वो लॉस्ट हो जाएगा। देन ही हैज पेटेंटेड हिज शूज। तो आप अगर किसी भी फील्ड में एक्सेल्ड हो और आप इन्वेंशंस करके ला रहे हो, एनी प्रोडक्ट और एनी प्रोसेस कुछ भी अगर आप बना रहे हो, तो यू कैन गो एंड फाइल फॉर इट्स प्रोटेक्शन अंडर पेटेंट्स। नाउ इन शॉर्ट, अभी तक जो भी हमने लर्न किया है, इन शॉर्ट अगर प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि ये इट विल हेल्प यू टू गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन द क्विज। ठीक है, क्विज में जो क्वेश्चन आंसर होंगे आपको बहुत हेल्प करेगा ये। सो इन सिंपल अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके पास कोई नया आइडिया है और आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो either in the form of painting, sculpture, posters, films, presentations, then you can protect your idea under copyright. Second thing is, if your idea is related to some product or process which have some advancement, technical advancement or economic significance, then you can protect it under patents. Third thing is, if your idea is related to quality or identity, अगर आपके ideas आपकी क्वालिटी या आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देन यू कैन फाइल फॉर इट्स प्रोटेक्शन अंडर ट्रेडमार्क्स। एंड लास्ट थिंग इज, इफ योर आइडिया इज रिलेटेड टू द अपीयरेंस, देन यू कैन प्रोटेक्ट इट अंडर डिजाइन्स। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ फ्रॉम दिस आई कैन एक्सप्लेन यू, एक ही डिवाइस में आपकी मल्टीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ये मोबाइल है, तो दिस कंपनी, आई हैव द मोबाइल ऑफ रेडमी कंपनी, so that name, the brand name, it is protected via trademark. इसको हम ट्रेडमार्क के अंडर प्रोटेक्ट कराएंगे। नाउ कि वो दिखने में कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसकी विड्थ कैसी है, इसकी हाइट कैसी है, इसके लुक्स कैसे हैं ओवरऑल, वो प्रोटेक्ट होगा आपका डिजाइन्स में। देन द टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ एडवांस फीचर होंगे, इसका कैमरा बेटर होगा, सो दैट टेक्नोलॉजी इज प्रिवेंटेड बाय पेटेंट्स। नाउ एक यूजर मैनुअल आता है जब भी हम कोई मोबाइल फोन या कोई गैजेट खरीदते हैं, सो दैट यूजर मैनुअल, वहां पे देयर इज इंफॉर्मेशन एज इफ हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर डिवाइस। तो वो यूजर मैनुअल आप कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे? अंडर कॉपीराइट। नाउ अनदर एग्जांपल, जैसे लैपटॉप है, तो इसमें जो लोगो है, it is protected under trademarks.
then the display is protected via patents, क्योंकि इसका यूनिक डिस्प्ले होता है जो कि और डिवाइसेस में नहीं मिलता, तो it is this technical feature is prevented by patents. And then the design कि ये looks कैसे होने हैं, लाइट वेट होना है या ग्रे कलर होना है, these all things are protected via I am on 52nd slide of the presentation. Yes. So इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होगे कि जो लोगोज हैं, जो ये एप्पल का मार्क है, ये क्या है, ब्रांड को सिग्निफाई करता है, और इसको आप कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे, ट्रेडमार्क में. देन जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो आप कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे, पेटेंट्स में. देन जो इसके डिजाइन है, इसका कलर कैसा है, वो कहाँ प्रोटेक्ट होगा, डिजाइन्स में. एंड देन द यूजर मैनुअल, जो इसके साथ यूजर मैनुअल आता है, वो आप कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे, कॉपीराइट्स में. नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Next slide. So I request all the participants to unmute themselves and answer these questions. So अभी आपको जो फिगर 1 दिख रही है उसमें आप बताओगे कि कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. क्विकली आप आंसर कीजिए so that we can wind up early. Participants can unmute themselves and answer the question, which intellectual property is there in figure 1? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so I request all the participants, please unmute and answer the question. फिगर 1 में आपको कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, डिजाइन्स है, ट्रेडमार्क्स है या जीआई है. You can write in the chat box if you don't want to answer. If anyone wants to answer, they can put it in chat box and also can unmute themselves, please. Okay, I have designs. The Mona Lisa painting, it is not design. It is not the subject matter of design. Painting is artist ने अपना आइडिया एक्सप्रेस किया है, ये डिजाइन के अंडर नहीं आएगा, ये कॉपीराइट के अंडर आएगा. तो फ्यूचर में अगर आप भी कोई पेंटिंग बना रहे हो तो उसको आप कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे, डिजाइन्स में प्रोटेक्ट मत कराना, उसको कॉपीराइट्स दिलवाना आप. ठीक है, कॉपीराइट्स का सब्जेक्ट मैटर है. नाउ द सेकंड का आंसर क्या होगा, स्कल्पचर जो है वो क्या है, स्कल्पचर्स को आप कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे, पेटेंट्स, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स या जीआई. प्लीज आंसर. You can answer in the right. Ma'am, you are not audible actually. In the chat.
No, ma'am, you are not audible. We can't hear that sound. Ma'am, you are not audible. चैट बॉक्स, अगर आप कोई नया स्कल्पचर बनाते हो तो आप उसको प्रोटेक्ट कहाँ Please wait for 5 minutes. Ma'am are joining soon. There is some internet issue. हेलो Yes, ma'am, you are now audible. I think I have tried one two screen, so I am getting equal to problem. Your voice is breaking, ma'am. Could you please repeat? Just wait a minute, ma'am. Hello. Yeah, now it's clear, ma'am. Okay. So, participants, you can unmute yourself and you can answer which intellectual property is there in figure 2. Can anybody answer the question? फिगर 2 में कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? पेटेंट्स है, डिजाइन्स है या ट्रेडमार्क्स है या फिर कॉपीराइट है? यू कैन पोस्ट द आंसर इन द चैट बॉक्स आल्सो. Am I audible now to everyone? Okay, then I am answering. So in figure 2 you will protect it under copyright, क्योंकि इसमें जो आर्टिस्ट है उसने he has expressed his idea via some painting, and
सेकंड थिंग इज ये डिजाइन्स में प्रोटेक्ट नहीं कराओगे आप, क्योंकि डिजाइन्स में वो चीजें आती हैं जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं, और ये जो स्कल्पचर है ये अपने आप में यूनिक है। दिस स्कल्पचर इज कम्प्लीटली यूनिक, ये सिर्फ एक ही बार बनाया जा सकता है, इसको इंडस्ट्रीज में जो बनाओगे उससे डिफरेंट है ये। इट इज प्रोटेक्टेड वाया कॉपीराइट। देन इन फिगर 3 में कोई बताएगा कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं? पेटेंट्स है, डिजाइन्स है, ट्रेडमार्क्स है या जीआईज हैं? ट्रेडमार्क मैम। ट्रेडमार्क मैम, ट्रेडमार्क। यस, ट्रेडमार्क। और क्या है? और भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसमें? फटाफट बताइए। इसको आपके अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे होंगे, डिफरेंट शेप्स है तीनों की। वेयर डू यू प्रोटेक्ट? कहाँ पे आप प्रोटेक्ट करोगे? पेटेंट्स में, डिजाइन्स में, ट्रेडमार्क्स में या फिर जीआई में? The shapes, different shapes of this product, it is protected via designs. ठीक है, यहाँ पे कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और दिखाई दे रही है आपको? डिजाइन्स। देन जो एप्पल की टेक्नोलॉजी है उसको आप पेटेंट्स के द्वारा प्रोटेक्ट कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज देखी हैं। फर्स्ट इज ट्रेडमार्क, देन डिजाइन एंड देन पेटेंट्स। ट्रेडमार्क्स है सिंबल के लिए, डिजाइन है ये अलग अलग कलर्स हैं उसके लिए, और टेक्नोलॉजी के लिए है पेटेंट्स। देन फोर्थ में क्या आंसर होगा? ट्रेडमार्क। यस। नेक्स्ट स्लाइड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? विच आईपी, कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेंटिंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं? कॉपीराइट। यस। नेक्स्ट स्लाइड। कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैशन डिजाइनर्स क्रिएट करते हैं? फैशन डिजाइनर्स कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं? पिछली स्लाइड में जाइए। यस, रजिस्टर्ड डिजाइन्स। यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांस्ड डिस्क ब्रेक्स अगर किसी ने बाइक्स के बनाए हैं तो उसको इन्वेंटर कैसे प्रोटेक्ट करेगा? पेटेंट्स में। यस। नेक्स्ट। इनमें से ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या हैं? BMW, पैठनी साड़ी, आयरनिंग मशीन विद स्टेम, प्ले स्टेशन या WWW? ज्योग्राफिकल। यस, पैठनी साड़ी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेडमार्क्स क्या प्रोटेक्ट करते हैं? लोगोस, नेम्स एंड ब्रांड्स। हाँ, यस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। पेटेंट्स कितने दिन के लिए, कितने टर्म्स क्या होती है पेटेंट्स की? कितने साल के लिए पेटेंट्स ग्रांट किए जाते हैं? 10 years, 20 years, 40 years? 20 years. यस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप कोई अपनी कहानी लिखना चाह रहे हैं तो कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विल अलाउ यू टू सेल द कॉपीज ऑफ योर वर्क? कॉपीराइट। यस। कॉपीराइट। नेक्स्ट स्लाइड। इमेजिन अ क्रिकेटर, कोई क्रिकेटर है उसको अपनी खुद की क्लोथ्स की कंपनी बनानी है, तो वो कैसे अपनी क्लोथ्स की कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा मार्केट में? कॉपीराइट्स के द्वारा, जीआई के द्वारा, पेटेंट्स के द्वारा, रजिस्टर्ड डिजाइन्स के द्वारा या ट्रेडमार्क्स के द्वारा? आई थिंक ट्रेडमार्क। यस, ट्रेडमार्क्स, क्योंकि उसको पहचान बनानी है अपनी कंपनी की, तो अपने क्लोथ्स को कोई सिंबल देगा या लोगो देगा, तो उसको वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे प्रोटेक्ट कराएगा अपने सिंबल्स को? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क। ना नेक्स्ट स्लाइड। हाँ,
अगर कोई कंपनी एक इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, तो अपनी टेक्नोलॉजी को कहाँ प्रोटेक्ट कराएगी? कॉपीराइट में, जीआई में, पेटेंट्स में, डिजाइन्स में या ट्रेडमार्क? पेटेंट यस, नेक्स्ट स्लाइड। फॉर फर्दर ट्रेनिंग, आपको अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं इन RGNIIPM. इट इज देयर इन नागपुर। और आप Okay, so thank you so much, ma'am, for your valuable information. It is really useful for all of us. Now, if anyone have any doubt or query, please put it in chat box or unmute yourself. If anyone have any query, they can ask in chat box. Do anyone have any doubt? Okay, so I think no one has any question or doubt. So without wasting any time, let us move forward. Thank you so much. Now, so good afternoon all. As all good things come to end in life, so is this webinar. On behalf of Kekewa College of Pharmacy, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this session on intellectual property awareness program by our institute. At the outset, I thank our resource, Ms. Ujwala ma'am, person. We are really enlightened with your knowledge and presence. We are thankful to our management, trustees, president, secretary for their motivation and providing this platform and opportunity. I would like to thank Dr. R.D. Amrutkar for their support. A special thanks to organizing committee, teaching and non-teaching staff for their support and coordination. Our heartful thanks to our delegates for active participation. With these warm words and kind message, we move to the end of today's webinar. Thank you. With the due permission of Principal Sir, I would like to conclude today's session. Okay, so I hereby declare that today's webinar is over. Thank you everyone and thank you, ma'am. Now everyone can leave, and ma'am, we are here concluding the session. Thank you.